A very good afternoon to all the CA Inter students out there. So this lecture is basically focused on highlighting the keywords, like how you should highlight the keywords while you study the audit. And I have picked up the chapter Audit Evidence today because it's the basic chapter, and you can find a good weightage of this chapter in the exams too. So if you have the exams in September 25, so this video is completely dedicated to you, like what keywords you should focus on and how you can highlight the keywords, and I will tell you how you can retain that too. So let's begin this chapter. So first of all, I would like to highlight that what are we supposed to study. We will not cover the entire chapter today. We will cover it in bits and parts. So today is the first part. So let's begin this. So the first thing is the audit evidence, right? So I will pick up each and every definition one by one. So please don't worry. So the first thing is audit evidence, and what all things we will cover. We will cover meaning of it, right? And then we will cover the sources from where we can obtain the audit evidences, its relevance and reliability, sufficiency and appropriateness, evaluation, and then the audit procedures. So these are the 5 to 6 things which we are supposed to cover in the entire chapter. So let's begin this chapter by not wasting much of the time. And so the first thing is audit evidences. So what do you feel when somebody tells you कि audit evidences क्या है? तो suppose, so first of all, whenever you are studying the audit, आप इस तरीके से पढ़ो कि आप ही ऑडिटर हो. आप अपना ब्रेनस्टॉर्म करो कि अगर आपको कोई एविडेंस चाहिए, बिकॉज आपको एक ओपिनियन फ्रेम करनी है, राइट? आप ऑडिट क्यों करते हो? आप किसी की फाइनेंशियल्स का ऑडिट क्यों करोगे? क्योंकि आपको देखना है कि उसकी फाइनेंशियल्स कितनी ट्रू है, कितनी वो रिलायबल है, कितना हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट? तो हमें इसलिए ऑडिट एविडेंसेस को इकट्ठा करना है. तो अगर मैं इस डेफिनेशन को कि ऑडिट एविडेंस को हमने कैसे लर्न करना है और ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन को हमने कैसे याद रखना है टिल द एग्जाम्स, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज ऑडिट एविडेंस. ठीक है, ये आपका क्या आएगा? ऑडिट एविडेंसेस. तो ऑडिट एविडेंसेस आपका क्या होता है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है. द फर्स्ट कीवर्ड इज द इंफॉर्मेशन, कि आपने क्या लेना है, इंफॉर्मेशन लेनी है. किसने लेनी है? ऑडिटर ने, बिकॉज यू आर द ऑडिटर. व्हाई यू वांट टू टेक द इंफॉर्मेशन? बिकॉज यू हैव टू फॉर्म द कंक्लूजन. एंड आपको उस कंक्लूजन को क्यों लेना है, आपको वो कंक्लूजन क्यों बनाना है, सो दैट आप अपनी ऑडिटर्स की ओपिनियन उस पर बेस कर पाओ. So 4 things that you have to remember from the definition of the audit evidences. You can write if you really want to, or I will share the summary notes of mine. You can put that in comments and then I will share the summary notes also. So the first thing is the information. आपको information collect करनी है. किसको करनी है इंफॉर्मेशन कलेक्ट? हु इज सपोज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन? एन ऑडिटर इज सपोज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन. किसका कंक्लूजन उसने निकालना है? फाइनेंशियल्स का निकालना है, एरियाज का निकालना है कि कौन से एरियाज बहुत रिस्की हैं, कौन से एरियाज लेस रिस्की हैं, कितना फाइनेंशियल्स उनके रिलायबल हैं, और उसके बेसिस पे आप अपनी ऑडिटर की ओपिनियन को बेस करोगे, राइट? सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन. सो द फर्स्ट थिंग यू कैन सी हेयर इज ऑडिट एविडेंसेस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based. अब आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन यूज करनी है, राइट? आप इंफॉर्मेशन के 2 पार्ट्स में आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो कि आपके कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको यूज करनी है. तो ईदर यू कैन यूज द इंफॉर्मेशन विच आर देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और यू कैन यूज द अदर इंफॉर्मेशन. सो देन यू कैन स्प्लिट द इंफॉर्मेशन इनटू द 2 parts, right? So what you can do, you can split the information that you have arrived into 2 parts. First is financial information and another is the other information. So these are the things that this is the way through which you can really learn the definition. And I think जब आप ऐसे पढ़ोगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी चीजों को याद रखने में, बिकॉज आप बहुत ही बाइफरकेट कर करके चल रहे हो. फर्स्ट इज evidence की definition, audit evidence की definition, then from that in that definition we have a one word which is information. and कौन सी आपके पास information होनी चाहिए? एक आपके पास internal information होनी चाहिए financial information से जो related है, and एक आपके पास दूसरी information होनी चाहिए which is something other information. we will come on that also कि वो other information और financial statements की information क्या होती है, ठीक है? अब इसके बाद जब आपको पता है कि information जो accounting records में हो सकती है,
फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइंट ने अपना एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिया, वो टेली में या कोई भी उस अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके डेटा मेंटेन होता है, तो उस डेटा में से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब उसके डेटा में से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरल एंट्रीज देख सकते हो, ठीक है। आप उसकी जनरल एंड सब्सिडरी के लेजर्स देख सकते हो, ठीक है। कोई भी उसने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई हो, कोई भी उसने कंप्यूटेशंस बनाई हो, आप उनको कंसिडर कर सकते हो। कोई उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे फ्रॉम द विद द डेटर्स, ठीक है, कि हमारा डेटर से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारा हमारा डेटर से रिसीट कितने दिनों में आएगा, कितने दिनों में हमारी डिलीवरी होगी, जो भी आपने उसको इनवॉइस इशू करे होंगे। सो दीज आर द सर्टेन points which you can really learn when it comes to the accounting records का information, ठीक है। and then the other information में आप क्या क्या ले सकते हो, other information में आप minutes of the meetings ले सकते हो। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स क्या होते हैं कि हर एक कंपनी अपनी मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स को रखती है, ठीक है। अब जब वो मीटिंग्स हो जाती है तो एक मिनट्स निकल के आते हैं, और उस मिनट्स में हमको पता होता है कि समरी की इस मीटिंग में हमारे पास क्या डिस्कस हुआ था। कुछ मेजर चीज तो डिस्कस नहीं हुई, ठीक है, कुछ मेजर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के बारे में डिस्कस तो नहीं हुआ, कुछ लीजेस के बारे में डिस्कस तो नहीं हुआ, लोन्स के बारे में, शेयर होल्डिंग के बारे में। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच यू कैन टेक फ्रॉम द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, ठीक है। आप रिटन कन्फर्मेशन ले सकते हो फ्रॉम द डेटर्स एंड द क्रेडिटर्स। तो इसको हम और ब्रॉड तरीके से आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि जब भी आप ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने जाते हो, सो देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स विच वी विल लर्न इन डिटेल कि कौन कौन से आपके पास ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या ऑडिटर ऐसे तरीके ढूंढता है जिससे उसको एक करेक्ट ऑडिट एविडेंसेस मिले। तो उसका एक तरीका है कि आपके पास जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं, आप उनके पास जाओ और उनको बोलो कि आप हमें बताओ कि आपका कितना पेबल है इनके पास, और आपका कितना इनके पास अमाउंट अभी और है जो रहता है, राइट। तो उस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं रिटन कंफर्मेशन। So this is one of the procedure which the auditor generally use to collect the audit evidences, ठीक है। और वो आपको कहाँ नहीं मिलेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेगा, वो आपको बाहर मिलता है। इधर यू कैन सेंड द कंफर्मेशन बाय मेल और सम अदर क्राइटेरिया, बट वो आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। और आपके जो भी मैनुअल्स हैं जिसमें इंटरनल कंट्रोल्स की डिटेल्स होंगी, बिकॉज जब आप किसी भी क्लाइंट के यहाँ पे जाते हो तो उनके बहुत सारे खुद के इंटरनल कंट्रोल्स लगे होते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब है बहुत सारी चीजें हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। कैश कलेक्शन की एक चीज है, ठीक है, परचेज ऑर्डर प्लेस करने की एक चीज है, सेल्स को रिसीव करने की एक चीज है। तो उसके लिए डिफरेंट हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। तो वो सिस्टम्स जितने भी होते हैं उनको हम इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं कि इंटरनली हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, हमारे इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग है। तो उसके बेसिस उनके जो मैनुअल्स होते हैं जिसमें इंटरनल कंट्रोल्स की सारी डिटेल्स होती हैं, यू कैन ऑल्सो रेफर दैट, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कि आपके ऑडिट एविडेंसेस की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है। तो जो आपकी टाइप्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो एक आपकी टाइप होती है नेचर वाली टाइप, दूसरी आपकी टाइप होती है सोर्स वाली टाइप। तो नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का आप सुन के ही समझ में आ जाता है कि किस तरीके का है, भाई ओरल है, रिटर्न है, ठीक है, देख के पता चल रहा है किस तरीके का उसका नेचर है एविडेंसेस का। सेकेंड चीज है सोर्स। सोर्स मतलब आप या तो एविडेंसेस इंटरनली गैदर कर रहे हो या फिर आप एविडेंसेस को एक्सटर्नली गैदर कर रहे हो। So these are the considered as the source, whereas these are considered as the nature. तो आपको ऑडिट एविडेंस अगर कोई बोले कि कितने पे डिपेंडेंट है, टाइप्स कितनी ऑडिट एविडेंसेस की, सो देयर आर 2 टाइप्स दैट वी हैव। विजुअल का मतलब होता है कि आप उसको जा रहे हो और एक ऑडिट का जो भी आपका क्लाइंट का स्टाफ है, जो भी चीजें वो कर रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप गए और आपको ये देखना है कि क्लाइंट के पास इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। और क्लाइंट फिजिकल इन्वेंट्री भी करता है, खुद भी करता है, मैनेजमेंट भी फिजिकल इन्वेंट्री चेक्स करता है, बिकॉज इट इज अ रूल कि ऑडिटर तो करता ही करता है एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, बट क्लाइंट का जो स्टाफ है वो भी फिजिकल इन्वेंट्री करता है, वो काउंट करता है। तो आप उसके प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व करो, राइट, कि क्लाइंट कैसा फिजिकल इन्वेंट्री का काउंट किस तरीके का है, क्लाइंट का वो किस तरीके से अपनी फिजिकल इन्वेंट्री जो है उसका काउंट को वो करता है। सेकेंड चीज है आपके पास आप ओरल। जैसे आप सपोज मैं आपकी क्लाइंट हूँ, आप मेरे ऑडिटर हो, तो आप मेरे सिर्फ एक फेयर डिस्कशन कर लो कि अच्छा इस चीज का
क्या प्रोसेस है आपका, ठीक है। आप डेटर्स की कलेक्टिबिलिटी किस तरीके से करते हो, तो आप मेरे से कुछ रिटर्न में नहीं ले रहे हो, यू आर जस्ट डिस्कसिंग इट विद मी इन द ओरल फॉर्म। सो द सेकेंड थिंग इज ओरल, जहाँ पे आप डिस्कशंस करते हो मैनेजमेंट से या किसी भी उनके ऑफिसर से। एंड द लास्ट इज द डॉक्यूमेंट्री, जो आपको रिटर्न फॉर्म में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका सेल्स बिल है या कोई भी आप लोन के एग्रीमेंट्स लेना चाहते हो, आपको लगता है कि क्लाइंट की बहुत सारी बोरोइंग्स हैं, तो आपको एक लोन एग्रीमेंट चाहिए जिसके हिसाब से आप चीजें इवेल्युएट करोगे फर्दर। सो दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। सो इफ वी रिकॉल अगेन, सो व्हाट आर द kind of the types of the audit evidences? So we have two types of the audit evidences. First is nature पे depend करता है एंड सेकेंड इज उसके सोर्स पे डिपेंड करता है। तो नेचर पे आपका फर्दर डिपेंड करता है उसके विजुअल में, ऑरल में और डॉक्यूमेंट्री में, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। विजुअल मतलब आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, ओरल मतलब आप डिस्कशंस कर रहे हो, एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप उनसे कुछ रिटर्न में ले रहे हो, राइट। एंड देन देर इज सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि आपका सोर्स क्या है एविडेंस लेने का, या तो आप अंदर से ही ले लोगे, मतलब आप क्लाइंट के, मतलब जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप जिसका आप ऑडिट कर रहे हो वहीं से ले लोगे। एक होता है आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लोगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि वो डेटर और क्रेडिटर से एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेता है कि आप बता दो कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना बैलेंस ड्यू है। सो दैट इज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, राइट। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एविडेंसेस, यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिलेंगी। आई होप दैट इज क्लियर नाउ। एंड आप कोटेशंस ले सकते हो, राइट। आप, और जब आप इंटरनल पे आते हो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेल्स के चालान की कॉपी ले लो, गुड्स रिसीव नोट्स की कॉपी ले लो, इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी ले लो। तो दीज आर द इंटरनल एविडेंसेस। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको ये सारे याद रखने हैं, बट आई कैन लाइक हेल्प यू लर्न few of them. For example, external confirmation में ये बहुत easy है याद रखना कि confirmations जो होती है they are the part of the external confirmations, right? उसके बाद आप quotations ले सकते हो client से, ठीक है। आप सप्लायर का चालान ले सकते हो, परचेज इनवॉइसेस ले सकते हो। तो यू कैन लर्न एनी थ्री ऑफ देम, ठीक है। नॉट मच इंपॉर्टेंट बट येस यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। उसके बाद कमिंग फॉरवर्ड सॉरी, हमें ये देखना पड़ता है कि जो ऑडिट एविडेंस है वो कितना रेलिवेंट है। रेलिवेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर September 25 एग्जाम, तो आप जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो वो कितना रेलिवेंट है। ऐसा तो नहीं आप कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो विच इज नॉट इवन अलाइनिंग विद योर गोल, कि आपका जो गोल है दैट इज टू स्कोर 60 to 65 मार्क्स, बट आप स्टडी मटेरियल बहुत ही अजीब सा पढ़ रहे हो। आप आईसीआई का जो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है उस पर फोकस नहीं कर रहे, उसकी 100% कवरेज नहीं कर रहे। सो दैट इज कि आपका वो जो टारगेट है उससे आपका जो इंटरनल जो आप उसमें प्रोसेस कर रहे हो वो कितना रेलिवेंट है। तो ऑडिट एविडेंस जिसके बेसिस पे आपको ओपिनियन फ्रेम करनी है वो कितना रेलिवेंट है आपका ऑडिट एविडेंस। एंड देन अदर थिंग इज रिलायबल। रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी, कि आपके पास चलो ऑडिट एविडेंस आ गया, सो इज इट ट्रस्टवर्दी सोर्स, या फिर वो ऐसा तो नहीं है कुछ फेक आ गया, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर व्हाइल वी ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन कि जो आप भी आपका क्वालिटी है ऑडिट एविडेंस का वो दो चीजों से इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट इज इट्स रिलायबिलिटी एंड द सेकंड थिंग इज इट्स रेलिवेंस, ठीक है। सो दिस कैन बी द पार्ट ऑफ द एमसीक्यू कि आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो किसके ऊपर रिलाई करता है। सो फर्स्ट इज इट्स रेलिवेंस एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट्स रिलायबिलिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द रिलायबिलिटी? तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है, रिलायबिलिटी का मतलब है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट किसी चीज पे आना, किसी एविडेंस पे आना, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई उसका सोर्स क्या है, ठीक है। मतलब किसी फेक सोर्स से तो नहीं आ गया वो, राइट। एंड उसका नेचर क्या है। सो टू थिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। फर्स्ट इज इट्स सोर्स एंड द सेकंड थिंग इज इट्स नेचर। सो वी विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल इन द पॉइंट्स बिलो। तो बट आईसीआई क्या करता है, कभी कभी आईसीआई एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस किन किन चीजों से इम्पैक्ट होती है, ठीक है। किन किन चीजों से आपको लगेगा कि अब जो मेरे को सोर्स मिल, अब जो मेरे पास ऑडिट एविडेंस आया है वो एकदम ठीक आया और मैं इस ऑडिट एविडेंसेस के बेस पे, इसकी रिलायबिलिटी के बेस पे अपना कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ, राइट। So there are certain circumstances and there are certain generalization that the ICAI has given कि अगर यहाँ से चीजें आती हैं तो आप एज्यूम कर लेना कि आपका जो ऑडिट एविडेंस है दैट इज कंप्लीटली रिलायबल।
तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको अगर इंडिपेंडेंट सोर्स से मिला है आउटसाइड द एंटिटी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ऑडिट एविडेंस आपको लेना था एंड आपने किसी ऐसे सोर्स से ले लिया जिसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, एंड आपने इंटरनली ही किसी से ले लिया, आप बस गए ऑर्गेनाइजेशन में, आपने किसी से पूछा कि अच्छा आपको इसका कोई सपोर्ट अवेलेबल है, उसने बोला हाँ, आपने लिया एंड यू जस्ट रिलाइड ऑन दैट डॉक्यूमेंट। सो आपके लिए आइडियली वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उसने बोला है कि कब आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, जब इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सोर्स आउटसाइड द एंटिटी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स इज द कीवर्ड हेयर वेयर यू कैन राइट कि इंडिपेंडेंट सोर्स से अगर हमें मिलेगा, ठीक है, तो हमारे पास वो जो एविडेंस होगा दैट वुड बी मोर रिलायबल। सेकेंड थिंग कि जो भी हमारे पास कंट्रोल्स है, जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं हमारे पास, परचेज का कोई भी प्रोसेस चल रहा है, पेरोल का चल रहा है, सेल्स का चल रहा है, तो हमारा इसका पूरे 7 to 10 स्टेप्स का एक प्रोसेस होता है। ऐसे तो सेल्स नहीं हम करते, ऐसे हम परचेज भी नहीं प्लेस करते, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है उसमें जितने भी आपने कंट्रोल्स लगा रखे हैं, मैनुअल कंट्रोल्स लगा रखे हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगा रखे हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगर वहां पे है, तो वो जो कंट्रोल्स आपने लगा रखे हैं जहां जब वो आपका प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, वो कितना इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड आउट दिस लाइन, द reliability of the audit evidence that is generally generated internally is increased when the related controls are effective, ठीक है। तो अगर वो कंट्रोल्स आपके बहुत इफेक्टिव होंगे, अगर उन कंट्रोल्स में कोई भी ज्यादा लूप होल्स नहीं होंगे, ठीक है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि आपकी जो रिलायबिलिटी है ऑडिट एविडेंस की वो इंक्रीज हो गई। बिकॉज अगर आप सपोज करो आपके कंट्रोल्स बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इनकी परचेजेस ठीक होती हैं, मतलब परचेजेस मतलब कोई भी ऐसी परचेज नहीं होती जो मतलब जो फेक हो, ठीक है। जैसे हम कभी कभी सेल्स बढ़ाने के लिए अपना फ्रॉड करने के लिए सोचते हैं, फिर उस फ्रॉड करने के पीछे क्या होता है कि कोई लूप होल होगा ना सिस्टम में, तभी तो फ्रॉड्स हो रहे हैं। बट अगर हमारा सिस्टम इतना इफेक्टिव होगा तो हमारे चांसेस ऑफ लूप होल बहुत कम होंगे, तो हम उसमें उस एविडेंस को ज्यादा रिलाय कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज, जो भी आपने डायरेक्टली लिया है ऑडिट एविडेंस, वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू विच यू हैव ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली और यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फेरेंस। मतलब अगर आपने कोई भी इंक्वायरी करी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल खुद से, या फिर आप खुद आपने मांगा है, तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो इसमें हमने बोला है कि डायरेक्टली आप कहाँ से लो, खुद से लो, रेदर देन आप किसी के ऊपर रिलाय करने से ज्यादा है कि आप उसको खुद से ही ले लो, वो आपका ज्यादा बेटर है, राइट। एंड अनदर थिंग इज कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिल रहा है, लाइक वी स्टडीड अभी नेचर में कि किस तरीके के आपको ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं। सो फर्स्ट इज कि आपको कैसा मिल रहा है, ओरली, और दूसरा है आपको रिटन मिल रहा है। तो जो भी आपको रिटन रिकॉर्ड मिल रहा है वो आपका मोर रिलायबल है एज कंपेयर टू जो भी आपको ओरल रिप्रेजेंटेशंस मिल रही है, ठीक है। तो अब अगर हम इसका याद करने का तरीका देखते हैं, ठीक है, तो नाउ वी आर सीइंग कि हम इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि याद करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट तो चलो हमको समझ में आ ही जाते हैं। तो रिलायबिलिटी में इसमें इन्होंने फ्लो चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली आईसे ने बना के दिया है, जहां पे उसने लिखा है कि एक तो आपको इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलना चाहिए, ठीक है, आपको कहां से मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलना चाहिए आईएस से। दूसरा आपका क्या करते हैं कि आपके कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव होने चाहिए। तीसरा आप ऑडिटर से डायरेक्टली लो। चौथा आप डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लो, कोई भी डुप्लीकेट्स मत लो, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं आपने, कोई भी आपने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने, बिकॉज डुप्लीकेट में देयर आर चांसेस कि आप उसको वो कर सकते हो, मतलब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो सकता है। बट अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू द डुप्लीकेट्स वन। तो आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट्स अगर आप याद करते हो तो इट इज इजी टू स्कोर द 5 नंबर्स। एंड आई डोंट थिंक कि ये 5 पॉइंट आपके याद रखने बहुत बड़ा टास्क है अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं। सो फर्स्ट अगर मैं देखती हूँ तो फर्स्ट इज कि आपको इंडिपेंडेंट सोर्स से करना है। दूसरा अगर मैं देखती हूँ तो ऑडिटर से डायरेक्टली लो, ठीक है, और आपको डॉक्यूमेंट्स में लेना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में लेना है। तो आप डॉक्यूमेंट से 2 पॉइंट्स बना सकते हो कि एक तो मुझे डॉक्यूमेंट में ही लेना है और जो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए दैट शुड बी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राइट। तो इससे आपके 2 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। फिर आपने क्या करना है कि
इन दोनों को कंबाइन करो कि ऑडिटर लेगा, और जब ऑडिटर खुद एविडेंस लेगा ना तो वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से एविडेंस लेगा, वो बायस नहीं होगा। ऑडिटर का ये एक क्वालिटी होती है कि वो बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी से चलता है और वो बहुत ही इंटीग्रिटी से चलता है। तो आपके ऐसे 4 पॉइंट्स कवर होते हैं। पहला पॉइंट, इफ आई रिपीट इट अगेन, आपको क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए। कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। डायरेक्टली कौन लेगा? ऑडिटर लेगा। ऑडिटर कैसे सोर्सेज से लेगा? इंडिपेंडेंट सोर्सेज से लेगा। उसके बाद आपका क्या आ रहा है? जो आपके भी कंट्रोल्स होंगे वो कैसे होने चाहिए? इफेक्टिव कंट्रोल्स होने चाहिए। इसको आप सेपरेटली कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 समझ आया? सॉरी। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आप अभी इसको क्या करो, एक अपने समरी बुक में या जो भी आप जहां पे भी प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे लिख लो कि ये पॉइंट्स कैसे इंटर रिलेटेड है। उसके बाद नाउ वी आर कमिंग टू द सफिशिएंसी एंड द एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, तो आपका ऑडिट एविडेंस कैसे होना चाहिए? अभी हमने पढ़ा कि भाई वो रिलायबल होगा और वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो रिलायबिलिटी आपकी किस चीज से इंपैक्ट होती है कि आपने किस सोर्स से लिया है एंड आपने उसका नेचर क्या है। अब उसके बाद हमने रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा कि रिलायबिलिटी किन किन चीजों से इंपैक्ट होती है, राइट? अब हम पढ़ रहे हैं कि सफिशिएंसी एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस क्या होता है, बिकॉज दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आईसीआई समटाइम्स। एंड अगर वो थियोरेटिकल फॉर्म में ना आए तो वो एमसीक्यूज में तो बड़े आराम से आ सकता है। तो सफिशिएंसी का मतलब होता है कि क्वांटिटी क्या है ऑडिट एविडेंसेस की। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी का ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है? आपका मन करेगा आप 2 सैंपल्स भी निकाल सकते हो, आपका मन करेगा कि आप 10 भी निकाल सकते हो। तो ये जो क्वांटिटी का फ्लक्चुएशन आ रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो इज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। एंड एप्रोप्रिएटनेस जो है वो मेजर किसका है? आपका क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, की कितनी क्वालिटी का मेरे पास ऑडिट एविडेंस आया है। मतलब क्वालिटी मतलब उसकी अगेन रेलिवेंस एंड इट्स रिलायबिलिटी। तो जब हम रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, आरआर की जब हम बात करते हैं तो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एप्रोप्रिएटनेस, राइट? और जब हम सफिशिएंसी की बात करते हैं तो वी आर आस्किंग फॉर द क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, बिकॉज ऑडिट एविडेंस अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट जैसे हमने पढ़ा रिलायबल हो भाई वो, ठीक है, और वो बहुत क्या हो? रेलिवेंट भी हो। कोई भी रेलिवेंट सोर्स से अगर मुझे कुछ मिल रहा है या अगर मुझे कोई भी रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है, सो दैट इज ऑफ नो यूज फॉर मी। ठीक है, उससे मेरा ऑडिट ओपिनियन खराब होगा। ऑडिट ओपिनियन मतलब मेरे कंक्लूजन्स ड्रॉ खराब हो जाएंगे। सेकंड है मेरे पास सफिशिएंसी। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी। अब हमें क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है, हमें क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, रेलिवेंट भी होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द 3 to 4 थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल वी आर कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस। सो सफिशिएंसी एंड द क्वांटिटी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। ये रहा। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी एंड सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि अब हमें सफिशिएंसी और उसका मतलब रिलायबिलिटी और रेलिवेंस का मतलब, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब कैसे पता चलेगा। सो बिफोर गोइंग टू दैट पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये आईसीआई का इलस्ट्रेशन है जिसमें वो बोल रहा है कि देयर वाज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, वीएम एंड एसोसिएट है, और इसका कोई एक पार्टनर है वीएम एंड एसोसिएट का, वो अपने ऑडिट टीम मेंबर्स को समझाता है अबाउट द ऑडिट इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, और वो उनको बोलते हैं कि सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है, सफिशिएंसी मतलब सिंप्लिसिटी एंड उसके बाद एप्रोप्रिएटनेस मतलब कितनी आसानी से आप ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कर रहे हो, मतलब ईज ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंसेस। तो इज इट द करेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, तो आप खुद बताओ सिंप्लिसिटी और आपका क्या है? ease of maintaining audit evidences, is this the meaning of audit evidence, right? So इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये जो पार्टनर अपने टीम मेंबर्स को समझा रहा है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आपका इससे सिंप्लिसिटी ऑफ ईज से कोई मतलब नहीं है कि आपको कितनी आसानी से ऑडिट एविडेंस मिल रहा है और आपको कितनी सिंप्लिसिटी से ऑडिट एविडेंसेस मिल रहा है। रेदर सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज रिलेटेड टू क्वांटिटी, ठीक है, एंड एप्रोप्रिएटनेस इज रिलेटेड टू द क्वालिटी। सो क्यू, राइट? सो क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, सफिशिएंसी इज क्वांटिटी एंड appropriateness is quality. So this statement is wrong which is given by them.
ठीक है। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि आपकी सफिशिएंसी जो है वो किस किस चीजों पे, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब अगर क्वेश्चन आपके पास आए आईसीआई का या एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए कि 3 फैक्टर्स बता दो जिसपे मेरी सफिशिएंसी क्वांटिटी डिपेंड करती है, ठीक है, तो आपको कौन कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स बताने पड़ेंगे उनको कि जिससे मेरा क्वांटिटी पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, जिसपे मेरा क्वांटिटी पे क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा। सो द फर्स्ट इज मटेरियलिटी, सेकंड इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, थर्ड इज द साइज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो वी विल डिस्कस इट वन बाय वन एंड देन मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपको इसमें कैसे कैसे क्या करना है, लर्न करना है। अभी तक जितना है समझ आया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अब आता है मटेरियलिटी एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो पहले आते हैं पॉपुलेशन पे, क्योंकि दैट इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड। तो इसमें आता है नंबर ऑफ आइटम्स आपकी पॉपुलेशन में कितने हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन का क्या मतलब है, अगर आप कोई भी एक आइटम को सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल पेरोल, ठीक है, या अगर आप करते हो रेवेन्यू, या अगर आप करते हो परचेज, तो अगर आपके पास परचेज के सपोज 500 इनवॉइसेज हैं, ठीक है, 500 आपके पास, उस आपने लेजर देखा, सब कुछ देखा, उसमें देखा कि आपने 500 की आपके पास पॉपुलेशन है परचेजेस की, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 500 में से मुझे कितना सैंपल उठाना है, या मुझे कितनी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, यहाँ से एविडेंस मुझे कितने लेने हैं, मतलब कितनी परचेजेस बोगस परचेजेस हो सकती हैं, ठीक है, कितनी परचेजेस जेन्युइन परचेजेस हो सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा। सो पहला आप समझ में आया कि ये क्यों है इसका फैक्टर, बिकॉज आपको यहाँ से सैंपल उठाना है। सैंपल उठाना है मतलब आपको कुछ ऑडिट एविडेंसेस उठाने हैं। सैंपल उठाओगे आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आपसे कोई भी परचेज करी, यू आर एन ऑडिटर, ठीक है, आपका थर्ड पार्टी हो कोई, आप एक ऑडिटर हो, मैंने परचेज करा, तो आपको ये देखना है कि जो मैंने परचेज करी वो ऑथेंटिक है या नहीं है। आप बोलोगे कि अच्छा यार मुझे इनवॉइस दिखा दो, तो ये तो एक उसकी बात है, लेकिन अगर इतनी सारी पॉपुलेशन है तो आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई मेरी पॉपुलेशन किस तरीके की है। अगर तो वो होमोजीनियस पॉपुलेशन है, एक जैसी है, एक ही पार्टी से आ रहे हैं, एक ही तरीके का आ रहा है, आइटम्स एक ही तरीके के परचेज हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, लेस एविडेंस लोगे, क्योंकि आपको पता है ना कि सारे एक ही तरीके के हैं और पॉपुलेशन ज्यादा है भी नहीं, 500 ही तो है। लेकिन इफ दिस फिगर इफ वी शूट दिस फिगर ऑफ 500 टू सपोज 2000, तो आपके पास कितने ज्यादा परचेज हो गए, है ना। और इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारे पार्टीज से आप परचेज कर रहे हो और डिफरेंट आइटम्स भी परचेज कर रहे हो, तो आपकी पॉपुलेशन हो गई हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो इसमें आपको कितना ज्यादा इनवॉइसेस लेना पड़ेगा, कंपैरेटिवली तो ज्यादा इनवॉइसेस ही लेना पड़ेगा ना इसके कंपैरेटिवली। तो साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन से आपको डिसाइड होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ द पॉपुलेशन उठानी है, राइट। एंड देन इफ वी कम बैक टू फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, विच इज द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आपके पास क्या मतलब होता है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दो चीजें हमारे पास इंक्लूड होती हैं। टू थिंग्स आर कवर्ड अंडर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं रोमम, राइट। तो रोमम में हमारे पास क्या होता है, इट मे बी द डिफाइंड एज द रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, दे आर, मतलब या तो वो गड़बड़ किस चीज की हो सकती है, एरर की हो सकती है, या मे बी वो गड़बड़ फ्रॉड से हो सकती है, बट वो जेन्युइन, मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के। फर्स्ट कंपोनेंट इज इनहेरेंट रिस्क, सेकंड इज द कंट्रोल रिस्क, ठीक है। तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि ऐसा रिस्क कि ये तो जैसे होता है ना कि इनबिल्ट है कि इतना तो होगा ही होगा, मतलब इतना तो मेरा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो मिसस्टेटेड होंगे ही होंगे। एज्यूम करो कि कोई भी कंट्रोल भी नहीं है, अभी तो हमारे पास कंट्रोल है, बट एज्यूम करो कि कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो उस टाइम पे जितना मिसस्टेटमेंट होगा ना उतना हम मान लेते हैं कि ये तो इनबिल्ट है, इनहेरेंट रिस्क है ये हमारा, ठीक है। कंट्रोल रिस्क होता है कि जो हमारे पास कंट्रोल्स तो हैं, लेकिन उन कंट्रोल से हम लोग एरर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे और ना ही हम उनको प्रिवेंट कर पा रहे हैं। तो द रिस्क दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट कुड अकर, दैट कुड बी मटेरियल, विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस, ठीक है। हम उसको टाइमली बेसिस पे अपने कंट्रोल से डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहे, सो दैट इज द कंट्रोल रिस्क। कौन नहीं करेक्ट कर पा रहा, कंट्रोल्स, so that is why we are calling it as a control risk।
ठीक है। और इनहेरेंट रिस्क क्या है कि हमारे पास सपोज करो कंट्रोल्स ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास क्या नहीं है, कंट्रोल्स है ही नहीं, तो जो रिस्क आएगा, जितना आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि एज्यूम कर लो भाई इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो उतना जो रिस्क आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द इनहेरेंट रिस्क। तो इसके ऊपर हमारे पास सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंट्रोल्स इतने खराब है कि हमारा वो मिसस्टेटमेंट को करेक्ट ही नहीं कर पा रहा, तो अगर हमारे पास कंट्रोल खराब है तो हमारे पास 2-3 स्टेप्स होते हैं ऑडिट को कैरी करने के लिए, कि अगर आपको लग रहा है कि यार आपके कंट्रोल तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो आप आगे क्या करोगे कि आप उसका जो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, दैट वी विल टेल इन डिटेल कि 2 टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है टीओसी, एक होता है टीओडी। टीओसी होता है कि हम जहाँ पे कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्लाइंट के कितने अच्छे कंट्रोल्स हैं। सेकंड होता है कि हम सब्सटैंटिव टेस्टिंग कर रहे हैं, असर्शन लेवल पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वाउचिंग कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, हम रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब हमारे पास हमें लगता है कि टीओसी खराब है तो हम अपना टीओडी बढ़ा देते हैं, भाई हमें कहीं ना कहीं अपनी ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देनी है और उसके लिए हमें ऑडिट एविडेंसेस अच्छे गैदर करने हैं, अच्छे क्वालिटी के गैदर करने हैं, रेलिवेंट एंड रिलायबल गैदर करने हैं, तो हम अपने टीओडी को बढ़ा देते हैं। और जब हमारा टीओडी बढ़ जाता है तो फिर हमारा स्कोप जो है ऑडिट का वो बहुत ज्यादा फिर बढ़ जाता है। तो फिर जब बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, अब ज्यादा टेस्टिंग करोगे, ज्यादा क्वांटिटी में टेस्टिंग करोगे, तो दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू सफिशिएंसी, कि हमारे पास जो ऑडिट एविडेंस है ना वो उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके कंट्रोल किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज मटीरियलिटी, ठीक है, थर्ड थिंग इज मटीरियलिटी। तो मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट, भाई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है कोई चीज किसी को, ठीक है, मतलब आपका टेस्ट सीरीज, आपकी प्रिपरेशन बहुत मटीरियल है इन क्रैकिंग योर सीए एग्जाम्स। मटेरियल है ना वो, उनका बहुत वेट है, मतलब अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं करी या आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, अगर सपोज आपने टेस्ट सीरीज नहीं करी, अगर सपोज टेस्ट सीरीज का मैं बता रही हूँ 30% का वेटेज है आपकी टोटल एग्जाम की क्रैक करने में, तो 30% का मतलब होता है कि आप 100 मार्क्स अगर आपका पेपर है और आप 30% से प्रैक्टिस लैक कर रहे हो बिकॉज आपने तो टेस्ट सीरीज ही नहीं अटेम्प्ट करी, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, आपको चीजें नहीं रिटेन हो रही, सो दिस इज इम्पैक्टिंग योर result in the final exam, right? So that is why this is so much material. Second example we can take कि आपने MCQs नहीं प्रिपेयर करे। अब MCQ जिस बच्चे ने प्रिपेयर नहीं करे वो अपने यहाँ से 70% की तैयारी करके गया एंड ही देन गो एंड सिट इन द एग्जाम्स ऑफ 100 मार्क्स, और उसको 30% के जो MCQs है उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा बिकॉज उसने तो कभी तैयारी नहीं करी थी। तो वो जो उसका 30% है दैट इज अगेन इम्पैक्टिंग हिज परफॉर्मेंस। तो ये क्या चीज है, बहुत इंपैक्टफुल है, ये आपकी डिसीजन पास होने के, एग्जामिनेशन लाने के डिसीजन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। सो सिमिलरली हमारे पास जो ऑडिट है तो उसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे जिनसे हमारा ऑडिट ओपिनियन पे फर्क पड़ेगा, जिनसे हमारी टेस्टिंग में बहुत फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा रिस्की एरिया होता है, बहुत ही ज्यादा मटेरियल होता है, बिकॉज रेवेन्यू से हमारी बहुत सी चीजें फर्क पड़ती हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपना रेवेन्यू करते हैं ना ताकि उनका जीपी बहुत ज्यादा दिख जाए, ताकि उनका एक्सपेंसेस, ताकि उनके डेटर्स बहुत अच्छे दिखें, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छे दिखे। तो ये बहुत सारे हमारे पास रिस्की ऐसे ऐसे कुछ कुछ एरियाज होते हैं। तो उस एरियाज को कितने वो मटेरियल हैं, किसके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, हु विल बी रिलाइंग ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस मटेरियलिटी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि मेरे को कितना टेस्टिंग करनी है, कितने मुझे प्रोसीजर्स करने हैं, कितने मुझे एविडेंसेस लेने हैं, कितनी क्वांटिटी के लेने हैं, कितने रेलिवेंट लेने हैं, कितने रिलायबल लेने हैं। तो उससे मटेरियलिटी से बेसिकली आपका क्या होता है, फर्क पड़ता है किस पे, सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस पे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस असर्शंस आर लेस मटेरियल, इतना ज्यादा है ही नहीं। बट ऑन द अदर हैंड इफ दे आर मोर मटेरियल देन मोर एविडेंसेस वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दिस इज क्या है, ये इनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेस एविडेंसेस विल बी रिक्वायर्ड अगर आपके पास लेस मटेरियल है, एंड मोर एविडेंसेस विल बी रिक्वायर्ड इफ you have very matlab like more material assertions, right? So I hope now the factors of the sufficiency are clear to you. There are 3 factors that on which the sufficiency is dependent. So the first factor is the materiality, second factor is the risk of material misstatement, and the third factor is the size and the characteristics of the population.
ठीक है। तो मटेरियलिटी में इफ आई टॉक अबाउट कि आपको मटेरियलिटी का कैसे फैक्टर बताना है, तो आप नॉर्मली लिख सकते हो वाइस वर्सा, जो इसका रिलेशन है कि लेस एविडेंसेस इज रिक्वायर्ड अगर हमारे पास मटेरियलिटी कम है, मोर एविडेंसेस इज रिक्वायर्ड अगर हमारे पास मटेरियलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। साइज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में व्हाट यू कैन रिमेंबर, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन एंड होमोजीनियस पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन, सिंपल। ठीक है। तो आपने कैसे करना है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, स्मॉल, लार्ज। तो इसके बेसिस पे आपका क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी सफिशिएंसी पे, क्वांटिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट में आपने इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, इसका आपने क्या देखना है कि कंट्रोल रिस्क क्या होता है। कंट्रोल रिस्क कैसे हो सकता है, कंट्रोल से। कंट्रोल्स क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, वो नहीं क्या कर रहे, एरर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन रिटेन दिस पार्ट कि मुझे कैसे कैसे इसको रिलेट करना है। एंड इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप अगर इस तरीके से रिलेट करोगे तो यू कैन इजिली रिमेंबर वट एवर आई हैव टोल्ड टू यू। ठीक है। सो दिस इज सो लाइक वी कैन रिवाइज what we have studied so far. So if I go back to my first page from where we have started, ठीक है, तो ऑडिट एविडेंसेस का क्या मतलब होता है, ऑडिट एविडेंसेस का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमने यूज करनी है। कौन यूज कर रहा है, ऑडिटर यूज कर रहा है। किसके लिए यूज कर रहा है, क्योंकि उसको कंक्लूजन देने हैं, कंक्लूजन से क्या करना है, ऑडिट ओपिनियन बनानी है। 4 थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है। एंड अब आपको जो क्या है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो आपको कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में से। सेकंड इज द अदर इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में से आप क्या क्या देख सकते हो, जर्नल एंट्रीज देख सकते हो, लेजर्स देख सकते हो, कंप्यूटेशंस देख सकते हो, रिकंसिलिएशन देख सकते हो। इतने याद करोगे बहुत है। और आप क्या कर सकते हो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स एक्सटर्नल में देख सकते हो, रिटन कंफर्मेशन देख सकते हो, आईसी का जो भी आपका मैनुअल है आप वो देख सकते हो। ठीक है। तो M2 कितना है, एंड W। तो M2 का मतलब हो गया MM और W का मतलब हो गया रिटन कंफर्मेशन। ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, जहां पे हमने बताया कि टाइप ऑफ ऑडिट एविडेंसेस में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट इज द नेचर, अनदर इज द सोर्स। तो नेचर में किस तरीके का आपको ऑडिट एविडेंस मिल सकता है, या तो आप विजुअली देख लोगे, आप ऑब्जर्व कर लोगे, विजुअल मतलब ऑब्जर्वेशन, ओरल मतलब डिस्कशन, डॉक्यूमेंट्री तो डॉक्यूमेंट्री है ही। ठीक है। तो विजुअल मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ओवी, ओरल मतलब ओडी, एंड डॉक्यूमेंट्री तो डॉक्यूमेंट्री है। सो ओवी, ओडी, डॉक्यूमेंट्री, राइट। एंड देन यू विल एक्सप्लेन अबाउट द सोर्स। उसमें बहुत ईजी है, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड उसके बाद हमने क्या कवर करा था, रेलिवेंस एंड द रिलायबिलिटी, कितना रेलिवेंट है, कितना आपके गोल से लाइन हो रहा है। एंड दिस कैन बी द एमसीक्यू क्वेश्चन कि आपका जो ऑडिट एविडेंसेस है वो किस पे, क्वालिटी जो है वो किस पे रिलाई होती है, रेलिवेंस एंड द रिलायबिलिटी पे रिलाई करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी का देन भी डिस्कस कि आपका रिलायबिलिटी किससे फर्क पड़ता है, उसके सोर्स से और उसके नेचर से। आर इज डिपेंडेंट ऑन वॉट, एस एंड एन। ठीक है। तो अब हमने इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा है कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट तो लेने ही है, वो कैसे लेने हैं, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लेने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने। कैसे डॉक्यूमेंट लिया हमने, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी डुप्लीकेट। फिर हमने पढ़ा कि डायरेक्टली ले लो, कौन ले ले, ऑडिटर डायरेक्टली ले ले, और क्या करे, इंडिपेंडेंट सोर्स से ले ले ऑडिटर। ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि कंट्रोल्स को हम अलग से लिख देंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस क्या होता है। तो सफिशिएंसी का मतलब होता है क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी। अब सफिशिएंसी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, सफिशिएंसी 3 चीजों पे डिपेंड करती है, मटेरियलिटी, साइज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। सो दिस इज सो फार दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि ऑडिट प्रोसीजर्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए, कि कौन कौन से आपके पास ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जिनसे आप ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन करोगे। भाई अगर ऑडिट एविडेंसेस मेरे को इकट्ठे करने हैं तो मेरे को प्रोसीजर भी तो पता होना चाहिए ना, कि मैं क्या क्या लगाऊं ऐसे जिससे मेरे पास ऑडिट एविडेंसेस आ जाए। तो एक होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। एंड एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में ये दो चीजें फर्दर बाइफरकेट होती हैं। जो हमारे पास फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है उसमें हमारे पास 2 चीजें आती हैं, टीओसी और टीओडी। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे।
और एक होता है हमारे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जहाँ पे पहले तो एक ना ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ वो करती क्या है, राइट। तो ऑडिट प्रोसीजर्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल इंक्वायरी। वी विल स्टडी दिस वन बाय वन नाउ, ठीक है। तो ये ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं जिसकी हेल्प से आप ऑडिट एविडेंसेस को इकट्ठा कर सकते हो। तो आप खुद सोचो, जब आपको कोई बोलेगा कि यार तेरे को इंस्पेक्शन करना है, तो आप इंस्पेक्शन में क्या कर सकते हो, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, आप उनको एग्जामिन करते हो, आप उसको क्या करते हो, स्क्रूटनाइज करते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। तो एग्जामिन करना है आपको, किस चीज को एग्जामिन कर सकते हो आप, रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर लो, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। पेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी मीडिया में भी हो सकते हैं, और आप खुद जाके फिजिकली एग्जामिन भी कर सकते हो। एनी ऑफ द थिंग यू कैन डू इन द इंस्पेक्शन, राइट। तो आपने क्या करना है, पहले एक इंस्पेक्शन करके देख लो कि यार मेरे को कुछ इससे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब फॉर एग्जाम्पल आप इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हो, एन एग्जाम्पल ऑफ द इंस्पेक्शन यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी परचेज करनी है, तो वो मैं ये देखूंगी कि वो परचेज जो मुझे करनी है वो मेरे पास रेलिवेंट अथॉरिटी से अप्रूव होके आ रहा है कि अच्छा ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को इतनी परचेजेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोटेशंस, बजट्स, वो सब चीजें ऑथराइज्ड है। तो आप उसकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल को देखोगे कि उसका कोई रिकॉर्ड है ऑथराइजेशन का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक बार इंस्पेक्शन इसको करके देखनी है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ऑब्जर्वेशन करना है, तो ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ भी नहीं करना। ऑब्जर्वेशन में आपको जो भी, जैसे हमने पढ़ा था अभी भी, कि जो भी वो प्रोसीजर एंटिटी आपकी परफॉर्म कर रही है, उस प्रोसीजर को आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एंटिटी क्या करती है, काउंट को वेरीफाई कर रही है, इन्वेंट्री काउंट को, तो आप उसको जाके एक बार ऑब्जर्व करो कि अच्छा ये ठीक है, ये ढंग से कर रहे हैं क्या काउंट, या नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें इंस्पेक्शन का आपको क्वेश्चन पढ़ाऊं, illustration number 4. So while auditing the books of AB Limited for this year, company used an audit procedures according to which complete documents and records were checked in detail in order to obtain this. ये कर रहा था AB Limited, क्या कर रहा था, ऑडिट कर रहा था। The auditor of the company used an audit procedures, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, to which complete documents were checked in detail. अब आप बताओ कि ये ऑडिट प्रोसीजर्स कौन सा है जिसमें आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल चेक कर रहे हो, किसके, कंपनी के, है ना। तो ये कौन सा प्रोसीजर है, अभी हमने पढ़ा है कि ये अगर आप किसी भी चीज को एग्जामिन कर रहे हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द इंस्पेक्शन, ठीक है। सो दिस ऑडिट प्रोसीजर्स विल बी कॉल्ड एज द इंस्पेक्शन, ठीक है। सेकंड हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया। थर्ड हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ा है, जिसमें आपने क्या करना है, आपने एक्सटर्नली जाके उनको कुछ भी रिक्वेस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल कंफर्मेशंस आर रेलिवेंट व्हेन एड्रेसिंग असर्शंस अबाउट द अकाउंट बैलेंस एंड दिस। मैं आपको ये समझा देती हूँ इसमें कैसे होता है। सपोज करो कि आप किसी चीज का, फाइनेंशियल्स के आइटम का ऑडिट कर रहे थे, डेटर्स का। आपको पता लगा कि डेटर का बैलेंस शीट में जो अमाउंट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग एट 2 लाख। अब आपको लग रहा है कि यार मुझे लग रहा है ये डेटर्स का अमाउंट पता नहीं ठीक है या नहीं है। तो आपने क्या करा, मैं आपकी डेटर हूँ, आप मेरे पास रिटन कंफर्मेशन लेके आए कि प्लीज कंफर्म आपका जो बैलेंस शीट पे अमाउंट है वो 2 लाख है या नहीं है, या आप मुझे ये बता दो कि आपका बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है। सो दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन से हमारे पास क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि सच्ची में इतने डेटर्स हैं या नहीं है, मतलब हमें उनकी एग्जिस्टेंस का पता चल जाता है, राइट। तो इसमें हमने क्या करना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिप्रेजेंट्स द ऑडिट एविडेंसेस एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। किसको रिस्पॉन्स आ रहा है, डायरेक्टली ऑडिटर को आ रहा है। किससे आ रहा है, थर्ड पार्टी से आ रहा है डायरेक्टली, किसी का बीच में इंटरफेरेंस नहीं है। इसकी रिलायबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। अभी हमने पढ़ा था ना कि इफ वी हैव रिसीव द ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम डायरेक्टली द थर्ड पार्टी एंड द एक्सटर्नल सोर्सेज, देन दे विल बी मोर रिलायबल। सो सिमिलरली जो आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो आपको डायरेक्टली मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, थर्ड पार्टी से, इन अ पेपर फॉर्म, दैट विल बी मोर रिलायबल एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो इसमें बोले द ऑडिटर मे रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और ट्रांजैक्शन द एंटिटी हैज विद द थर्ड पार्टी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। रिकैलकुलेशन का मतलब होता है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पीपी का, आप चाहते हो कि मेरे को पीपीई जो है उसका मुझे सब चीज पता चल जाए अच्छे से, पीपीई पे मुझे क्या मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए, ठीक है। पीपीई पे क्या मिल जाए आपको, कंफर्ट,
किस चीज का कंफर्ट, कि पीपीई में जो भी डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट करा है क्लाइंट ने, वो डेप्रीसिएशन का अमाउंट उन्होंने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट करा है। तो आप उस डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि वो अमाउंट जो है वो ठीक है या गलत है? आप खुद से कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, तो बट यू आर डूइंग द रिकैलकुलेशन। सिमिलरली अगर आपके पास कोई डेटर्स आते हैं, डेटर्स में क्या बनते हैं? प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स। वो किसके बेसिस पे बनता है? एस्टिमेट्स के बेसिस पे बनता है कि मेरा डेटर मुझे पैसे नहीं देने वाला, मैंने प्रोविजन बना लिया। तो जब वो प्रोविजन बनाएगा तो आपको कैसे पता प्रोविजन उसने कम बनाया है, ज्यादा बनाया है, ठीक बनाया है, गलत बनाया है, कौन से एस्टिमेट पे बनाया है? तो टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, what we do the reperformance, we do the recalculation manually or electronically. Then the next audit procedure is reperformance, means कि आपके पास जो भी reperformance है खुद आप उसको reperform करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। कैश एक ऐसा हमारे पास एरिया होता है जिसको हम शुरू से लेके आखिर तक पूरा ऑडिट करते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि कैश में बहुत सारे चांसेस ऑफ एम्बेजलमेंट हो सकते हैं, कैश में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो सकते हैं। तो आप क्या करते हो, जब आप कैश को जब आप वेरीफाई करते हो कि कैश हमारे पास ठीक है, बैंक का अमाउंट हमारे पास ठीक है, तो आपने उसके में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं दैट वी विल स्टडी इन द लेटर चैप्टर्स। तो पहला उसमें होता है कि आप क्या करो, बैंक से कंफर्मेशन मंगाओ। सिमिलरली मतलब फॉर एग्जांपल आपके कैश का बैलेंस आ रहा है, बैंक का बैलेंस जो बुक्स में आ रहा है वो आ रहा है 5 लाख। आपने बैंक को रिक्वेस्ट करी कि मुझे कंफर्मेशन दे दो कि जो अमाउंट है वो 5 लाख है। बैंक ने कंफर्मेशन दे दी, आपका काम हो गया खत्म, कि आपका तो बैलेंस मैच कर गया बैंक कंफर्मेशन से, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से लिए रिलायबल है, तो मेरा मतलब बैलेंस ठीक हुआ। इन केस आपका बैलेंस मिसमैच हो रहा है, तो बैंक कंफर्मेशन में तो पूरा अमाउंट आता है, उसमें हमारे पास बाइफिकेशंस नहीं आती कि ये जो 5 लाख का अमाउंट है इसमें ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुई थी। तो आप क्या करते हो, बैंक स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे को पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट दे दो। तो जब आपको पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट वो देता है तो उसमें आपको पता चल जाता है कि मेरे पास कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो आपको डिफरेंसेस पता चल जाते हैं। तो ऑडिटर क्या करते हैं, ऐसे एरिया जो उसको लगता है कि थोड़े से ज्यादा रिस्की है वो खुद से कर देता है, रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट वो खुद से परफॉर्म कर लेगा, या फिर वो एजिंग देख लेगा काउंटर रिसीवेबल्स की। एजिंग का क्या मतलब होता है, सपोज मेरे पास 100 डेटर्स हैं, तो जिसमें से 30 डेटर्स बहुत अच्छे हैं जो मेरे को विद इन 30 डेज में पैसा दे देते हैं, कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो मुझे 30 से 60 डेज में पैसा देते हैं, फिर कुछ ऐसे हैं जो मुझे 60 से 90 में देते हैं, फिर 90 के बाद वाले भी डेटर्स हैं। तो मुझे क्या करना होता है, मुझे ये देखना होता है कि इन्होंने जो एजिंग करी है कि डेटर्स कितने एज हो रहे हैं वो सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि मेरे को तो सारे डेटर्स 0 से 30 डेज में पैसा दे देते हैं, जबकि डेटर्स तो 120 डेज से बाद भी ओवर ड्यू है। तो आपको ये सब जो चीजें हैं ये बहुत रिस्की चीजें हैं, तो आपको इनमें क्या करना पड़ता है, आपको खुद से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। The next is analytical procedures and then the inquiry, right? So till this part we will cover it now, and then next of the part I will upload that too shortly. So the first is the analytical procedures. तो analytical procedures का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब होता है इवैल्यूएशंस करो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, कि आपको बैलेंस शीट मिल गई, P&L मिल गया, सब मिल गया। अब आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस आप कैसे कैसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास। या तो आप क्या कर लो, आप लास्ट ईयर का फाइनेंशियल्स निकालो, इस साल का फाइनेंशियल्स निकालो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना वेरिएंस है, राइट। तो आपने क्या करना है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स देखने हैं, ठीक है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स अमंग बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, इन्वेस्टिगेशंस ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस that are inconsistent with other information and deviate significantly from the predicted amount. मतलब अगर आपका इस साल का रेवेन्यू 15% से इंक्रीज कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों का कि आप 15, 10, 12%, 15% तो ठीक है, बिकॉज इतना तो मेरा कस्टमर बेस भी बढ़ा इस साल। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू 80% से बढ़ गया, 80% से बढ़ गया, तो आपके दिमाग में एक वो जागेगा कि 80% से मेरा रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है। तो आपने जब वो वेरियंस निकाला ना, तो वो वेरियंस बहुत डेविएट हो रहा है फ्रॉम द प्रेडिक्टेड अमाउंट से, तो आपको वो जो फ्लक्चुएशंस आई हैं उनकी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप नॉर्मली इंक्वायरी कर सकते हो, किससे आप इंक्वायरी करोगे, नॉलेजेबल पर्सन से, बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इंक्वायरी करो, किससे करनी है, नॉलेजेबल पर्सन से, ऐसे किसी से भी नहीं कर लेनी, बाहर किसी से नहीं करनी, किसके रिलेटेड, फाइनेंशियल से भी, नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड से भी, ठीक है, आउटसाइड द एंटिटी, इनसाइड द एंटिटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल इन द सम केसेस रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ ऑडिटर टू मॉडिफाई और रीपरफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स।
फॉर एग्जाम्पल आपको इंक्वायरी करके कुछ और ही पता चल गया कि नहीं इसमें ये चीज तो हुई नहीं थी, ये जेन्युइन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि मेरे को इंक्वायरी से अगर ये पता चला है तो मैं दोबारा प्रोसीजर रीपरफॉर्म कर लूँ या मैं दोबारा कोई और एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लूँ क्या, ठीक है। बट इसमें एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो रिस्पॉन्सेज हैं आपको जो इंक्वायरी से मिल रहे हैं, ठीक है, नॉट प्रीवियसली पोजेस्ड और विद कोलैबोरेटिव अदर ऑडिट एविडेंसेस, अल्टरनेटिवली रिस्पॉन्सेज माइट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द अदर इंफॉर्मेशन ऑडिट हैज ऑब्टेन्ड। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन पहले ली है उससे वो बिल्कुल मैच कर जाए। ऐसा हो सकता है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने पहले ली थी और जो आप अब ले रहे हो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। So these are certain procedures that the auditor will perform. Let's revise it once again. For example, inspection. Inspection का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना। अब अगर हम लर्न करने पे आए तो हमारा कीवर्ड इसमें है एग्जामिन, राइट। किसको एग्जामिन करना है, इंटरनल कर सकते हो डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन, ठीक है। पेपर फॉर्म में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो। सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन। आप जो भी परफॉर्मेंस हो रही है प्रोसेस की, आप उसको खुद क्या कर लो, ऑब्जर्व कर लो, सिंपल। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन है जो भी आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंसेस, किससे मिले, किसको मिलेगा, ऑडिटर को मिलेगा। कैसा, डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, राइट। तो इसमें चार चीजें हैं, क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस मिलेगा, किसको मिलेगा, ऑडिटर को, किससे मिलेगा, थर्ड पार्टी से मिलेगा, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। सो दीज आर द 4 कीवर्ड्स इन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। देन आप रीकैलकुलेशन का क्या मतलब होता है कि आपने मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया, ठीक है। रीपरफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि आपने खुद से इंडिपेंडेंटली रिव्यू कर दिया, खुद से इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर दिया। एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मतलब होता है कि जो भी आपके पास डेविएशंस आ रहे हैं, जो भी आपने एनालिसिस किया है ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, ऑन द फेस ऑफ द P&L, जो भी आपने एनालिसिस किया है उसमें जो भी आपकी फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, आपको उसकी क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी का क्या मतलब होता है कि आप नॉलेजेबल पर्सन से इंक्वायरी सीख करो, कैसी भी इंक्वायरी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है, ठीक है। और आप इनसाइड द एंटिटी भी कर सकते हो, आउटसाइड द एंटिटी भी कर सकते हो। तो आपके ये सारे प्रोसीजर्स हैं विच द ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म बाय कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस। इफ वी अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि आपको ये याद कैसे करने हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो एक हो गया इंस्पेक्शन, सॉरी, एक हो गया इंस्पेक्शन, एक हो गया इंक्वायरी, ठीक है। दूसरा हो गया रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, आई आई हो गए, आर हो गए, इनसे क्या कवर हो गए, 4। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करो, और फिर आप क्या करो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करो। तो आप इसको कैसे याद करोगे, पहले तो आपने 4 ये लिख ही लेने हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ये दोनों भी आपस में रिलेट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन इंक्वायरी भी मोर और लेस आपस में ये लोग मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आप खुद से ऑब्जर्व करो, क्या करो, आप खुद से ऑब्जर्व। फिर जब आपको लग रहा है कि ऑब्जर्वेशन से बात नहीं बन रही, तो आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दो। आपने ऑब्जर्व कर ली चीजें, आपको समझ आ गया, फिर आप क्या करो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दो। तो ये 2 चीजें और याद हो गई आपको, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ठीक है। अब ऑब्जर्व कर ली चीजें आपने, फिर आपने क्या करा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दिया। बट आप ये सब चीजें जब करते हो, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो सबसे पहले अगर आपको मैं बोलूं कि ये आपके फाइनेंशियल से आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा एक बार मैं इसके ऑन द फेस ऑफ जो भी मुझे P&L में दिख रहा है, एक बार इसको क्लोजली 10-15 मिनट में इसको देखूं और मैं थोड़ा एनालिसिस करके देखूं कि मुझे इसमें क्या नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, राइट। आप समझ में आया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करो। उसके बाद आप ऑब्जर्व करो चीजें, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बाद इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन। आई होप दिस इज वे टू मच क्लियर नाउ, राइट। So thank you so much everyone. I will upload the another part very soon. Till then enjoy the video and if you have any queries, if you want my material जिसमें मैंने इस तरीके से छोटे छोटे
याद करने के तरीके बनाए हुए हैं. सो प्लीज पुट दैट इन कमेंट बॉक्स. आई विल प्रोवाइड दैट टू यू. एंड in the meantime you can like follow my telegram channel, which description of which is given in my link and comment box, and then I will be more than happy to help you out. Thank you.